this lesson we discuss concept of magnetic circuit with air gap. So let's start this lesson. So in this lesson we discuss another type of magnetic circuit in which there is an air gap in the magnetic core. Okay, तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस मैग्नेटिक सर्किट में ये जो कोर है यहाँ से हमने इतना पोर्शन कट कर लिया है. ओके, तो गाइस इससे क्या होगा कि अब जो ये मैग्नेटिक पाथ है यहाँ पे एयर गैप आ गया. ओके, तो अब हम देखेंगे कि इस एयर गैप के आ जाने के कारण अब मैग्नेटिक पाथ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है. ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, फ्लक्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर. ओके, सो दैट magnetic flux density of the core, that is BC, is equal to phi upon AC. Okay, where AC is the cross sectional area of the core, but the magnetic flux density in the air gap, that is BG, is equal to phi upon AG. Okay, where this AG is the cross sectional area of the air gap. So as we discussed in the last lecture that MF is equal to H dot L. Okay, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि MF कितना होता है, H dot L. Okay, where this H is the magnetic field intensity and L is the mean core length. mean core length का मतलब ये है कि जो हमारा फ्लक्स है उसने मैग्नेटिक सर्किट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है. तो इस सर्किट में जो हमारा MF कितना हो जाएगा, दैट इज F इज इक्वल टू SC इंटू LC प्लस HG इंटू G. ओके, तो जो ये MF है HG इंटू G, ये MF आया है एयर गैप के कारण. ओके, सो दिस एडिशनल MF इज ड्यू टू एयर गैप. ओके, तो इस सर्किट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा फ्लक्स है वो कोर में से तो जा ही रहा है लेकिन साथ में वो एयर गैप में से भी जा रहा है. ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे जो MF कंसीडर करेंगे उसमें हम कोर का MF प्लस इस एयर गैप का MF भी कंसीडर करेंगे. ओके, सो द MF ऑफ दिस सर्किट इज SC इंटू LC प्लस HG इंटू G. ओके, वेयर SC इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द कोर एंड LC इज द मीन कोर लेंथ इन द कोर प्लस Hg is the magnetic field intensity in the air gap and where G is the distance covered by flux in the air gap. Okay, तो ये G है, ये वो लेंथ है उस एयर गैप की या वो ये डिस्टेंस है जो फ्लक्स ने एयर गैप में ट्रेवल की है. ओके, so MF of this circuit is equal to MF of the core, that is SC into LC plus MF of this air gap, that is Hg into G. Okay, so guys as we know that B is equal to mu H, that means our magnetic flux density is equal to permeability multiplied by magnetic field intensity. That means here we can replace this H term by magnetic flux density. Okay, that means H is equal to B by mu. So MF is equal to BC multiplied by LC upon permeability of the core plus BG multiplied by G upon permeability in the air gap, that is mu naught. So now we can replace this magnetic flux density in terms of flux, because we know that magnetic flux density is equal to flux upon cross sectional area. Okay, so put the value of BC and BG here. So MF is equal to phi into LC upon mu C into AC plus phi multiplied by G upon mu naught into AG. Okay, so here we can take this flux common. So MF is equal to phi in bracket LC upon mu C into AC plus G upon mu naught into AG. Okay, so guys as we know that MF is equal to flux multiplied by equivalent reluctance. Okay, so if we compare this equation by this relation, then equivalent reluctance is equal to LC upon mu C into AC plus G upon mu naught into AG. Okay, so LC upon mu C into AC is the reluctance of the core and this G upon mu naught into AG is the reluctance of the air gap. So we can say that equivalent reluctance is equal to reluctance of the core plus reluctance of the air gap. Okay, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक सर्किट में एयर गैप के इंट्रोड्यूस हो जाने से जो एयर गैप का रिलक्टेंस है तो वो अब कोर के रिलक्टेंस के साथ डायरेक्टली ऐड हो रहा है. दैट मीन्स अब इस मैग्नेटिक सर्किट का जो इक्विवेलेंट रिलक्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है. ओके, तो अगर हम इसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इमेजिन करें तो ये एक सीरीज सर्किट होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट में जो रेसिस्टेंसेज होते हैं वो डायरेक्टली ऐड होते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट इस मैग्नेटिक सर्किट का. तो इस मैग्नेटिक सर्किट को हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट की फॉर्म में हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को सोल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं. वहां पे हमारे पास केवीएल होता है, केसीएल होता है, बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं. हम बड़े से बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं.
तो अगर हमने किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट की फॉर्म में, तो वहां हमारे लिए उस सर्किट को सोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम मैग्नेटिक सर्किट को रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट की फॉर्म में। तो जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो वहां स्टेटर और रोटर में एयर गैप होता है। तो अगर हम वो एयर गैप बढ़ा देंगे तो जो मैग्नेटिक पाथ होगा उसका रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं दैट आर कांस्टेंट फ्लक्स मशीन्स। तो जैसे कि अगर हम इंडक्शन मशीन की बात करें, ट्रांसफार्मर की बात करें, तो वो एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है। तो वहां पर जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप वहां रिलक्टेंस को बढ़ाओगे तो फ्लक्स तो कम होगा नहीं, तो फिर ये इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी? एमएफ बढ़ जाएगा। दैट मीन्स अगर फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो अगर आप रिलक्टेंस को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? एमएफ बढ़ेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो एमएफ होता है दैट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय आई। ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो अगर आप सर्किट में रिलक्टेंस को बढ़ाओगे तो फ्लक्स तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फ्लक्स को तो हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है। तो फिर क्या बढ़ेगा? एमएफ बढ़ेगा। और अगर एमएफ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, दैट मीन्स करंट बढ़ेगी। ओके, और इस करंट को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, और इस करंट को हम मैग्नेटाइजिंग करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये करंट है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए। ओके, दैट मीन्स कोर को मैग्नेटिक बनाने के लिए। ओके, दैट मीन्स जो ये मैग्नेटाइजिंग करंट है ये हमारे कोर में फ्लक्स को इंड्यूस करती है उसे मैग्नेटिक बनाने के लिए। ओके, तो इसलिए हम इसे मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमें ये मैग्नेटिक सर्किट गिवन है और हमें ड्रॉ करना है इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। तो अगर आप इस मैग्नेटिक सर्किट में देखोगे तो इसमें 3 लिम्स हैं और यहाँ पे जो परमिबिलिटी कितनी है? इनफाइनाइट है। ओके, तो परमिबिलिटी इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि जो रिलक्टेंस क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जो रिलक्टेंस कितना होता है? L अपॉन म्यू ए। ओके, सो इफ म्यू इज इनफाइनाइट देन रिलक्टेंस वुड बी 0। रिलक्टेंस 0 होने से मतलब ये है एंटायर फ्लक्स इज डेवलप्ड इन द कोर। तो अगर परमिबिलिटी इनफाइनाइट होगी तो रिलक्टेंस कितना होगा? 0 होगा। दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिकल टर्म में देखें तो ये एक शॉर्ट सर्किट है। जैसे कि हम जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट पाथ से जैसे पूरा का पूरा करंट फ्लो होता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो पूरा का पूरा फ्लक्स है ये इस कोर में से पास हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी फ्लक्स लीक नहीं करेगा, पूरा का पूरा फ्लक्स इस कोर में से पास होगा। तो इनफाइनाइट परमिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो फ्लक्स है वो हमारा पूरा का पूरा इस कोर में से पास होगा। तो यहाँ पे परमिबिलिटी इनफाइनाइट होने का मतलब ये है कि इन तीनों लिम्स का जो रिलक्टेंस होगा वो 0 होगा। ओके, तो जो भी रिलक्टेंस होगा वो इन दोनों एयर गैप्स का होगा। ओके, सो रिलक्टेंस ऑफ फर्स्ट एयर गैप दैट इज G1, लेट अस से R1 is equal to G1 upon mu into A1. Okay, and the reluctance of second air gap G2 that implies R2 is equal to G2 upon mu into A2. Okay, so this is the reluctance of first air gap and this is the reluctance of second air gap. ओके, तो जैसे हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे जो फ्लक्स डेवलप होगा वो किस तरीके से ट्रेवल करेगा इस कोर में? इट विल बी गोइंग लाइक दिस एंड इट विल बी गोइंग लाइक दिस। ओके, तो अगर हम इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट टर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पे जो हमारा ये फ्लक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स रिलक्टेंस ऑफ दिस एयर गैप आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और अगर हम इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपेयर करें तो जो फ्लक्स का एनालोगस क्या होता है? करंट होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट डिवाइड कब होती है? जब रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो ये रिलक्टेंस होंगे ये पैरेलल में लगे होंगे। ओके, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हम EMF को रिप्लेस करेंगे MF से और इन दोनों रिलक्टेंस को, दैट मीन्स रिलक्टेंस ऑफ फर्स्ट एयर गैप एंड रिलक्टेंस ऑफ सेकंड एयर गैप, इन दोनों रिलक्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस मैग्नेटिक सर्किट। ओके, तो अगर हम प्रीवियस केस की बात करें तो वहां पर फ्लक्स था वो कॉमन था। दैट मीन्स सेम ही फ्लक्स पास हो रहा था कोर के रिलक्टेंस में से भी और एयर गैप के रिलक्टेंस में से भी, इसलिए हमने वहां पे रिलक्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो ये फ्लक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इन रिलक्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया है। ओके, तो गाइस ये होता है मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट। तो मैग्नेटिक सर्किट में आपको सिर्फ 3 चीजें पता होना चाहिए, रिलक्टेंस क्या होता है, MF क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है। ओके, और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और साथ में आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये है मेरा व्हाट्सअप का नंबर। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए।
और अगर आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी पर देखना चाहते हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ पे आप इसी लेक्चर को अनअकैडमी पर देख सकते हो बिना किसी ऐड के, और साथ में इसी लेक्चर के जो PDF फाइल्स है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको उस लेक्चर को वॉच करना होगा, जिससे आपके वॉच टाइम के अकॉर्डिंग आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे और उन कॉइन्स को आप यूज़ कर अनअकैडमी पर इसी लेक्चर की PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।